How is everyone doing? कैसे हैं आप सब लोग? Wow, hello Aman, Divya, hello Diksha, hello Adarsh, hi Kalpit, Vedant, Ravi, hello Roli. I am doing great, guys. Thank you very much for asking. I hope you guys are doing great, and I hope you guys have had a great day. And also, midweek hai, so first half of the week, I suppose it has gone very good. Yeah, and I hope that the rest of your week would go better. Hello Shweta, hi Pooja, hi Khushbu, hello Chandan, hello Rami, Divya, Akshay, Prince, good evening everyone. So this, ladies and gentlemen, is the beginning of something new. So we have successfully covered entire thing of arithmetic and algebra, and now we are moving ahead with something called the number system. Yeah, this is our first lecture on number system where we are going to introduce number systems to ourselves. We will talk about what is its importance, what are the things that get covered, and also we will start with a little bit of something from number systems today. My name, ladies and gentlemen, is Amit Surana. I am an aeronautical engineer from Chennai, Tamil Nadu. I have 6 years of experience teaching quantitative aptitude across different platforms, and I have trained at different regions of our country as well. And I've helped over 2 lakh students get themselves into a position that they're very much proud of. And I'm hoping this 2 lakh would increase immediately after our CAT 2020. And a quick update, guys, please follow hashtag Cat Life Daily on Instagram. Yes, this will keep giving you updates. This will keep yourselves really connected to us outside of YouTube, that is. Yeah, great. So this is our agenda for today, guys. This is our agenda. What we are going to talk about is, first we'll introduce ourselves to number systems, see uska importance kya hai, कौन से concepts test किए जाते हैं, and then we'll start off with something called classification. Yeah. Yes, everyone is on time. Yes, except for me, everyone else was on time. Yeah. अपन मैं थोड़ा सा, हाँ, अभी अभी पूरा तो एक दिन में नहीं कर सकते है ना. अभी सी, आई टेल यू समथिंग अबाउट नंबर सिस्टम्स इज a very big concept. Okay, it's a very big concept, and number system actually covers a big a big array of topics under its umbrella. तो पूरा एक दिन में करना would be too much, and we would want to instead cover everything than putting everything in one, है ना. So we will try to cover it in as less sessions as possible, but then we'll cover it in entirety. Yeah. Anubhav has given a very good answer to Prince, so I guess I should stay out of that conversation now. Thank you, Anubhav, and Prince. I will definitely take some fashion tips from you. Okay, guys. So if you're looking for updates on your, on the channel, on the classes that we take, and anything related to our Unacademy CAT channel and the classes, the notes, the annotations, any notifications, any change in time, all of that would be sent here. So get yourself added to the Telegram group that we have. The community has grown stronger. Yes, it's more than 1200 people right now. And I remember at one point in time, it was just a few of us, right? And look at our family, it's growing so much. Also, guys, right now is a very good time for you to, invest in, yeah, it's a very good time for you to invest in your future. So if you're looking for something that will fetch you, uh, some good returns, yes, then this is what you would do. Yeah. इसके बारे में अगर आपको और कोई डिटेल्स चाहिए, see this ultimately this is something that the amount of content here is 4 times what you get outside, but the cost of it is 1/4 of it. Do you understand? So this kind of a deal, or this kind of a package, let's see the entire motive behind Unacademy's price being so low. I get being asked by a lot of learners कि sir इतना कम क्यों है, right? The reason is that the aim here is something else, right? It's not making money. Making money is the other part of the entire business. The main motive here is to impart education at different parts of our country that actually don't get to receive that. Yes.
So we're talking about star educators like Arun Sharma, Patrick D'Souza, who are, at one location, but they cannot travel, and currently they cannot travel at all, right? So this platforms gives a chance to all of those learners who have been, longing, who have been waiting for such kind of classes, legendary classes. Yeah. So that is the entire purpose of, this and the prize being so low. And the other purpose of me talking about this is if you use, my referral code Surana Live, you would get an extra 10% discount. So that's the reason why I am talking about it. Yeah. So let's begin with our class. Yeah. Oh wow. विभोर जरूर करेंगे what we would do is instead of taking a live session we would put it as a video or probably do something about it but आपको उसके solutions और उसका discussion जरूर मिलेगा है ना. We'll try to figure out a way in which we can manage that. Yeah. All right, so Vaibhav is ready. How many of you are ready, guys? Yeah, how many of you are ready? Send me a sign. Give me a sign. Show me something to say that you are ready. Introduction तो चालू किया जाए sir. तुरंत चालू किया जाए. Don't think about it twice sir. Do it. I am ready. Show me that. फटाफट से जो है quickly hit like guys. Hit like on the video because you will definitely get quality education from here. Yes, इतना knowledge मिलेगा आज के session में that some of the common misconceptions would also be cleared है ना. सुपर. कायनात, विभोर, साई, रवि, प्रसन्नजीत, शुभम सब रेडी है. बाकी लोग क्या कर रहे हैं गाइस? कम ऑन, जल्दी से रेडी हो जाओ. फटाफट से वीडियो पे लाइक मारो और लेट्स बिगिन. यस, द क्लैशर्स आर रेडी फ्रॉम द बचपन. ऑलराइट, चलिए चालू करते हैं. पहली बात, लेट्स टॉक अबाउट द कैट्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. हमने अब तक क्या क्या कवर कर लिया? वी हैव कवर्ड द एंटायरिटी ऑफ द अरिथमेटिक सेक्शन. यस, the arithmetic section holds up how much weightage? The highest. Yes, the highest weightage is to arithmetic section where it takes up more than, somewhere close to 40% of the entire stuff. Yeah. So almost 40% matlab this would be somewhere close to 12 to 15 questions. Yes, so 12 to 15 questions जो है gets covered up in arithmetic section. अब इसके अलावा क्या है, तो ये हमने सबसे पहले चालू किया था, राइट? Every educator starts with this for two main reasons. One, it is very good, it is very easy to comprehend in the beginning level. जब चालू करते हैं तब समझने में बहुत आसानी होती है. The second reason, इसका weightage इतना heavy है मतलब 15 क्वेश्चन अगर आप कर लो, all 15 questions if you do, you are already above you are already above 80-85% of the candidates. समझ में आ रहा है? So this will fetch you so much score that you are already above 80-85% of the people. Yeah. So if you can master arithmetic and something else, right, 2 or 2.5 more concepts, then you are mastering CAT in the entirety. Yeah. इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है अपना algebra that we have just recently covered. Yes, we have just covered algebra. What have we covered in algebra? Everything that was there to cover. Yeah. And in very much detail also we have covered it, right? So algebra में से कितने question आते हैं? A little less than that, somewhere close to 30%. Yeah. So somewhere around 8 to 12 questions you get from algebra. Yes, you can even call it 10 to 12, but 8 to 12 seems like a very good number to talk about, right? So 8 to 12 questions from algebra would be asked. Yes, ये हमने cover कर लिया. So do you see how you have already covered more than 50% of the syllabus? Yes, more than 50% of the syllabus जो हमने cover कर लिया, खत्म. Yes, वो that is past. अब क्या करना है अपन को? The remaining 50% पे focus करना है, right? So one half of it is done. The other half of it is what you have to focus on. Now, anyone who's been attending Prateek sir's class, anyone who has been attending Prateek sir's class knows for a fact कि उनका geometry तो done ही समझो, है ना? प्रतीक सर क्लास लेते हैं रात के 10 से 11. yes, 10 to 11 जब most of you are binge watching some random shows, तब सर क्लास लेते हैं ताकि people who are professionals, people who work can get the benefit of that. Yes, so geometry is as good as algebra, a little low you can say, so you can call this one having somewhere around 8 to 10 questions.
Yes, तो ज्योमेट्री, algebra, arithmetic, this is the majority of it. Yes, so far what have we covered? अपने क्लास में, मेरे क्लास में, अमित सर के क्लास में आपने क्या क्या कवर कर लिया? अरिथमेटिक, अलजेब्रा डन. प्रतीक सर की क्लास अगर आप फॉलो कर रहे हो तो क्या क्या कवर हो गया? अरिथमेटिक, ज्योमेट्री डन. Yes, that means you have mastered more than 90% of the syllabus. अब आपको क्या करना है? सो यू हैव बीन इक्विप्ड विद द इंफॉर्मेशन. अब उस इंफॉर्मेशन को यूज करो, प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट दो, सेक्शनल मॉक टेस्ट दो, कॉन्सेप्ट वाइज मॉक टेस्ट दो, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट दो, राइट. बट यू विल हैव टू एंश्योर कि जो हमने पहले क्लास में किया था, अप्रैल 20 को जो हमने चालू किया था, दैट हैज टू बी डन ऑन अ रेगुलर बेसिस, ताकि वो आप ना भूल जाए. या अब आते हैं आज के मुद्दे पे. आज का मुद्दा क्या है? अपना नंबर सिस्टम. यस, सो लेट्स टॉक अबाउट आवर नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम का क्या सीन है गाइस? नंबर सिस्टम ऐसा वाला टॉपिक है जहां पे पढ़ने को बहुत ज्यादा है बट पूछने को इतना नहीं है उनके पास, राइट. यहाँ पे पढ़ने को बहुत ज्यादा. दिस इज एन ओशन. इनफैक्ट एन ओशन वुड फील इंफीरियर इन फ्रंट ऑफ नंबर्स, राइट. सो यू कैन बेसिकली कम अप विद क्वेश्चंस from any part of numbers and there's too much to talk about it. Yeah, we've spent our entirety of primary school understanding number systems only, है ना. तो बट इसमें से कितने क्वेश्चंस आएंगे? इसमें से क्वेश्चंस आएंगे 3 to 5. यस, 5 इज एन ओवर स्टेटमेंट. सबसे ज्यादा 4 क्वेश्चन आए हुए हैं, दैट ऑल्सो पार्शियली रिलेटेड टू नंबर्स, है ना. तो 3 से 5 क्वेश्चन आएंगे नंबर से, और पहले ये खत्म कर देते, फिर नंबर सिस्टम के बारे में डिटेल में बात करेंगे. और आखिरी क्या है? अपना मॉडर्न मैथ. मॉडर्न मैथ है नंबर का भी बाप. इतना सारा पढ़ने को, इतना सारा कॉन्सेप्ट है, इतने सारे एक्सेप्शन है, इतने सारे वेरिएशन है क्वेश्चन में, कि ये पढ़ते पढ़ते आप मतलब पढ़ते रहोगे और यहाँ पे कैट देते रहोगे. इतना समय लगेगा इसको कवर करने में, है ना. बट वी विल एंश्योर दैट यू नो इफ नॉट द एंटायर, मतलब पूरा खत्म करेंगे, राइट. अपने पास अभी टाइम ही टाइम है, क्योंकि नंबर सिस्टम आ गए हम. अब मेरे क्लास में क्या क्या बचा है? सिर्फ ज्योमेट्री और मॉडर्न मैथ. यस, ये खत्म हुआ, मतलब अपना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पूरा सिलेबस खत्म. यस, उसके बाद जो ऐसा प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे मॉक टेस्ट देंगे कि कैट क्या हम क्या. या अगेन इसका भी स्ट्रेंथ क्या है? its frequency is also somewhere close to this, so you will get somewhere around 2 to 4 questions from modern math also. Yes, so this is the breakup of our quantitative aptitude based on the previous experience, previous year question papers को रख के, उनका पैटर्न समझ के. दिस इज द बाइफर्केशन नहीं बोल सकते, यहाँ पे 5 में बट रहा है, राइट. 5 में बट रहा है, तो बाइफर्केशन नहीं है, ये पेंटफर्केशन है. जो भी ऐसा कोई वर्ड है नहीं है, आप बॉबी मैम से पूछ लेना या हरप्रीत मैम से पूछ लेना. बट दिस इज द स्प्लिट ऑफ इट. या इसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो पूछिए, वरना आगे बढ़ते. नंबर सिस्टम्स की और बढ़ते, नंबर सिस्टम्स का कोर समझते हैं. वी विल ट्राई टू फिगर आउट व्हाट नंबर सिस्टम्स आर, कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे कैसे लोगों को हमें देखना पड़ेगा, है ना. रेडी हो? डॉली, मॉडर्न मैथ स्किप कर दो, नंबर सिस्टम स्किप कर दो. मैं तो वो तो कैट स्किप कर दो. मॉडर्न मैथ स्किप मत करो, कुछ भी इसमें से स्किप मत करो. सी माई इंटेंशन हियर इज टू एंश्योर कि आपको थोड़ा थोड़ा सब कुछ है, और एटलीस्ट 2 में आप स्पेशलाइज कर लो. यस, थोड़ा थोड़ा आपको सब कुछ आना चाहिए और 2 में आप स्पेशलाइज कर लो. मतलब एरिथमेटिक में तो डेफिनेटली आपको स्पेशलाइज करना ही करना है. उसके अलावा आपके पास चॉइस क्या है? अलजेब्रा वर्सेस ज्योमेट्री, नंबर्स वर्सेस मॉडर्न मैथ. इसमें से कोई और 2 को आप सेलेक्ट कर लो एंड यू आर थ्रू. यस, हाँ वही तो, क्लैशेस जवाब दे रहे हैं. हाँ वही तो, बहुत बहुत सारा नंबर सिस्टम में, इतना सारा. ये देखिए गाइस, ये देखिए, ये रहा अपना स्प्लिट ऑफ द नंबर सिस्टम. इसमें से इतने सारे कॉन्सेप्ट्स मेरे को खुद को पता है, मेरे को नहीं पता कैसे डालू, कहां डालू, इतना लंबा लिस्ट जा रहा है. तो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव क्यूरेटेड अ लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम नंबर सिस्टम. यस, जो कि ना सिर्फ कैट में बट कोई भी टेस्ट में पूछे जा सकते हैं, राइट. सो प्लीज कीप इन माइंड गाइज, ये पूरा क्या है? सकते हैं वाला है, राइट. दिस इज नॉट है, हो सकता है वाला. दिस इज अ मे बी, नॉट अ विल बी. या बट ये कंफर्म है, ये कंफर्म है गाइज दैट द प्रॉपर फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं हर किसी का. प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स में क्या आता है? क्लासिफिकेशन आता है,
इवन ऑड के बेस पे क्वेश्चंस आएंगे, प्राइम कॉम्पोजिट के बेस पे क्वेश्चंस आएंगे, राइट। ऑल ऑफ दीज फॉल अंडर प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स और उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा हाई। या क्यों हाई? ना सिर्फ डायरेक्ट नंबर सिस्टम में, बट इसको रखे, इसके साथ मस्ती करके आपको अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसके साथ मस्ती करके आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से नंबर पूछ सकते हैं, आंसर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, है ना। तो दिस इज अ पॉसिबिलिटी, दैट्स व्हाई इसका फ्रीक्वेंसी हाई है। नेक्स्ट कम्स फैक्टर्स, मल्टीपल्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ देम। फैक्टर्स आपको पता है क्या होते हैं? नंबर्स दैट कैन डिवाइड अ नंबर। मल्टीपल्स क्या होते हैं? अ नंबर दैट कैन डिवाइड दीज नंबर्स आर कॉल्ड मल्टीपल्स। इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, आप टेंशन मत लो, ठीक है। यू डोंट वरी अबाउट ऑल ऑफ दिस, इनके बारे में हम डिटेल में डेफिनेटली बात करेंगे। यस, मतलब हम थ्रू एंड थ्रू नंबर सिस्टम को आर पार कर देंगे, ठीक है। तो हाई है ये भी। फिर आगे अपना HCF and LCM. Basically HCF and LCM is a extended part of factors and multiples only, क्योंकि HCF क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसका एक्सटेंडेड वर्जन ही है, बट इसको हम अलग से भाव दे रहे हैं, ठीक है। इसको हम अलग से मतलब इतना अटेंशन दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसका भी फ्रीक्वेंसी हाई है। तो जो डायरेक्टली पूछे जाते हैं क्वेश्चंस दैट गेट डायरेक्टली आस्क्ड विद रिस्पेक्ट टू HCF LCM, उनके एप्लीकेशन भी थोड़े हाई। या और अगेन इसका यूज सिर्फ नंबर सिस्टम में नहीं है, हर जगह पर। टाइम स्पीड डिस्टेंस में रेसेस ले लो, सर्कुलर रेसेस, LCF HCM के अलावा क्या करोगे आप, है ना। HCF LCM के बिना क्या करोगे वहां पे? यस, टाइम एंड वर्क ले लो, LCM के बिना क्या करोगे? यू अंडरस्टैंड मी, राइट। सो इसके इंपॉर्टेंस नंबर सिस्टम वाले क्वेश्चन में तो है ही है, उनके अलावा दूसरे क्वेश्चन में भी फैला के रखा है रायता इन्होंने। Yes, so these are all high frequency guys, these are all high frequency। इन पे तो डेफिनेटली हमें 100% ध्यान देना ही देना है। yes, तो अगर आप ये देख रहे हो, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ताकि आपको पता चलता रहे कि हमने कितना कितना कवर किया है, क्या क्या कवर किया है, और कौन सा पार्ट हमें एक्सपेक्टेड है कि पूछा जाएगा। yes, so keep a screenshot of this with you until and unless you can be sure of the fact that you have covered number system पूरा। फिर चलते हैं फैक्टोरियल्स की तरफ। यस, फैक्टोरियल्स में क्या है? एनीथिंग रिलेटेड टू फैक्टोरियल्स, टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन फैक्टोरियल नंबर के कितना हाईएस्ट डिग्री है, कितना हाईएस्ट पावर है, एंड ऑल दैट। देन वी टॉक अबाउट रिमाइंडर्स। द रिमाइंडर, द रीजन व्हाई आई पुट इट एज अ मॉडरेट क्वेश्चन, क्योंकि इसको डायरेक्टली बहुत रेयरली पूछा जाता है, राइट। सो दिस इज ईदर ट्विस्टेड विद वन ऑफ दीज थिंग्स। यस, तो रिमाइंडर्स भी है, इसमें अलग से कॉन्सेप्ट्स भी है, रिमाइंडर सर्कल है, आई मीन साइकिल है, उसका अलग रिमाइंडर थ्योरी है एंड ऑल दैट। यस, सो वी विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। यस, फिर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जो मतलब सालों में नहीं पूछा गया, राइट। These types of questions are the questions that have not been asked for a long time now। yes, जो क्या क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वो अपना आयोटा को रख के, यस, आयोटा लोटा को रख के जो क्वेश्चंस आते हैं वो है इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स। फिर आता है बेस सिस्टम, यस, बाइनरी, यस, ऑक्टल सिस्टम, ऑल ऑफ दैट। यस, तो इसमें बेस चेंज हो रहा है, डेसिमल मतलब 10 to 8 उसके हिसाब से। यस, एंड देन कम्स डिफरेंट थियोरम्स के बेस पे क्वेश्चंस, फर्मेट थ्योरम, यूलर्स थ्योरम, विल्सन थ्योरम, ऑल ऑफ दैट। यस, पर इससे बहुत रेयरली पूछा जाता है। आर यू फीलिंग मी गाइस? अंकुश, डेफिनेटली वी विल कवर ज्योमेट्री आल्सो ना, पूरा कवर करेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मेरे भरोसे अगर आपने छोड़ा है तो फिर भूल जाओ उसके बाद, मतलब भूलो मत, याद रखो, बट ऐसा भूल जाओ कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यस, दैट वी विल डेफिनेटली कवर 100% ऑफ द सिलेबस, टेंशन फ्री, है ना। तो ये रहा अपना नंबर सिस्टम का पूरा ब्रेकअप गाइस। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट, ले लो। यस, और ये ध्यान में रखना कि आपको प्रिपेयर इसको दिमाग में रख के करना है, बट इसमें से कुछ स्किप नहीं करना है। ये पूरा हम कवर करेंगे, चाहे जितना भी लो है पूरा कवर करेंगे। यस, बिकॉज वी आर लुकिंग एट अ क्वेश्चन फ्रॉम नंबर सिस्टम दैट इज डूएबल। इसका जो डिफिकल्टी लेवल है गाइस, इसका जो डिफिकल्टी लेवल है रेंजेस समवेयर बिटवीन 3 and 4 आउट ऑफ 5। यस, अगर आप 5 का एक बैंड ले रहे हो, if you are taking a band out of 5, एक सेकेंड गाइस, हाँ, if you are taking a band out of 5, तो इसमें से you get questions that range from a 3 to a 4। yes, a 3
to a 4. Got it? तो ये है इसका डिफिकल्टी लेवल, मतलब डिफिकल्ट है बट इम्पॉसिबल नहीं है, प्योरली डूएबल. गॉट इट? सुपर. तो चलिए फिर ये डन है. यस, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस विद रेस्पेक्ट टू दैट, what's the total marks allowed to this chapter? Kevin, okay, Kevin, we had spoken के इस chapter को कितने 3 से 5 question मिल रहे हैं, right? 3 to 5 questions for this concept. That basically means multiply it with 3, you would get somewhere close to 10 to 15 marks. Got it? Shivani, yes, algebra is done. Algebra is done and dusted. हमने उस पे जो है फतेह कर लिए. Yeah, all right. So ठीक है guys, so let's move on to our first concept of number systems. I hope you guys are very comfortable. I hope you guys are very fine where you are. अगर नहीं हो तो फटाफट से एक छोटा सा हाइड्रेशन ब्रेक, फटाफट से पानी घुटकिए जो भी करना है करिए, और फिर आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ. Yeah. Okay guys, so if you are ready for the session, then go ahead, hit like to this video and let's start talking about classification. अब इसके बारे में जब मैं बात करता हूं ना, तो थोड़ा सा मेरे को भी शर्म आता है. मेरे को लगता है क्या यार, मैं ग्रेजुएट लोगों से बात कर रहा हूँ, वर्किंग प्रोफेशनल से बात कर रहा हूँ, और मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? जो 4th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड के बच्चे पढ़ते हैं, राइट? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स. पूरे नंबर्स है, रियल है, इमेजिनरी है, रैशनल है, इरैशनल है, ये पूरा आपको जो है स्कूल का याद दिलाएगा. Yes, but how have we learnt the classification of numbers? In a very incorrect way. Yes, we have learnt it in a way कि हम क्या पढ़ रहे हैं, उसका definition पढ़ रहे हैं कि अगर कोई 1 mark 2 mark question में पूछ ले तो वो लिख दे हम. But we have not understood this through and through. तो अपना आज का aim क्या होगा? To understand what each of these question types stand for, what is their importance, और क्यों? क्योंकि इसके questions जो है indirectly पूछे जाते हैं. Right? Indirectly, you ought to know what an integer and non-integer is. You ought to know the difference between a whole number and natural number to answer the kind of questions. Again, guys, ये सिर्फ number systems का नहीं है, इसका importance कहाँ तक फैला हुआ है? Throughout your quantitative aptitude part. Yes, मैं इसमें से permutation, combination या probability का question निकाल के पूछ सकता हूँ. Are you trying to understand this? Yes, मैं इसमें से अलजेब्रा का क्वेश्चन निकाल के पूछ सकता हूं. तो ये अपन को जानना बहुत जरूरी है. या गॉट इट? चलिए, तो लेट्स टॉक अबाउट ईच ऑफ दीज इन डिटेल. ऐसे देख के तो कोई मतलब है नहीं, ये तो हमने बचपन से देखते आ रहे हैं, राइट? Let's talk about each of these in details and let's talk about if there are any specific rules about these, right? So let's start with what complex numbers are. Yeah, can anyone say what is the standard form of a complex number? एक complex number को मैं कैसे लिख सकता हूँ? Yes, what exactly is a complex number? A complex number is something that is a combination of both real and imaginary. So if I can write any term in the form of a plus bi या ib, जो भी, yes, if I can write it in the form a plus ib या a plus bi, जो भी है, this becomes a complex number. Yes, this has two parts in it. This has something called the real part and the imaginary part, है ना? तो ये हो गया अपना real part. The a part is called the real part of this number and the I part becomes the imaginary. क्यों? क्योंकि you cannot, there is no way you can imagine this number. Yes. So these are the two parts of the number. Any number can be written in the form of a plus ib. Yeah. Super. Very nice. Very good. All of y'all. बहुत खूब, बहुत खूब. Very nice. Kevin, P by Q is what we talk about when we talk about rational and irrational. ठीक है, वहां पे जाएंगे, जरूर जाएंगे. We'll touch that part also. Okay. So first let's deal with imaginary. Imaginary का क्या सीन है देख लेते हैं. Imaginary में क्या पूछा जाता है? I. Yes, everything revolves around this one expression called I. I cannot even call this a number. ये number भी नहीं है, क्योंकि a number is something that you can comprehend. Number is something that you can put on a number line, इसीलिए उसको number line बोलते हैं ना. But imaginary is something that does not exist anywhere on the XYZ plane. Yeah. तो I क्या हो गया? I का value is basically what? Square root of -1 that does not exist on the number line at all. Yes. This is something that's an unconceivable part of it.
Rinci, no. So I said that complex number is not a part of CAT for a past few years, but then पहले में पूछा गया, right? If you dig up and find out the papers for 2012 and उसके पहले का उसमें जरूर पूछा गया, right? But we are not taking any risk at all here. CAT है भैया, इसमें कुछ similarity होता ही नहीं है एक पेपर से दूसरे पेपर में, है ना? तो that is why. Got it? Yeah, okay. Now let's talk about the real number. What is a real number? Any number that is conceivable, any number that you can put in your mind. Yes, you can think of it is called a real number because it exists in reality. So you can pick up any real number and you can try to denote any physical existence in that form. Yes, तो वो होता है real number. तो उसके बारे में बात करते हैं, पहले इसके देख लेते हैं, मतलब इसके क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर के कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो वी विल टॉक अबाउट व्हेन वी टेक कॉम्प्लेक्स नंबर्स अलग से, ठीक है? जैसे कि i के पावर हो गए, हाँ, i स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यस, i क्यूब क्या हो जाएगा, -i हो जाएगा, ऑल दैट, यस, देयर इज अ साइकिल हियर आल्सो, एवरी फोर्थ i would end up being itself, yes, the sum of all first four powers of i would always be 0, वैसे वाला, yes. तो ये सब हम डिटेल में बात करेंगे जरूर, अब बात करके मतलब नहीं है क्योंकि उसके लिए हमें एग्जांपल क्वेश्चंस चाहिए होंगे टू अंडरस्टैंड कि ये कहाँ यूज आता है. एंड इफ यू आर समवन जिनने मैथ लेके या तो वह बरसों हो गए, सेंचुरीज हो गए, or you haven't been with math at all, right? The math part of your memory is blacked out. You think of math and you can't, you suddenly become Darshil Safari of Tare Zameen Par. If that is the case, then we will talk about these in details. Now let's move on with real numbers. Yeah, what are real numbers? Real numbers can be split under rational and irrational. Yeah, we can split this as rational and irrational. अब इसका मैं किसी को पूछूंगा कि सर रैशनल क्या होता है, इरैशनल क्या होता है, यू वुड बी लाइक, सर if I can write a number in the form of p by q where q is not equal to 0, that becomes a real number, that becomes an rational number. If I can't write it, then it becomes an irrational number. Yes, this is your perception towards it. Yes, now let me, फिर इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, देयर इज रेकरिंग, नॉन रेकरिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग. इतना कौन याद रखेगा यार, हमें क्या चाहिए, उस वो ध्यान, वो याद में रख के आपको उसका कुछ होने वाला है क्या, नहीं. तो आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन फॉर रैशनल इरैशनल. इस पे आप जो है पूरा फोकस दो, 100% ध्यान दो, ये आपको जिंदगी भर याद रहेगा. आपको वो p by q वाला, अच्छा एक बात पूछूं, कैन आई नॉट राइट एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q? कैन आई नॉट राइट एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q? मैं कोई भी नंबर उठा के उससे p by q में नहीं लिख सकता. यस, सो कैन आई नॉट राइट √3/1 एज p by q? तो ये p by q है ना, या बट उसमें क्या है, कंडीशंस है. p क्या हो सकता है, p हैज टू बी एन इंटीजर, q हैज टू बी एन इंटीजर, बोथ ऑफ देम हैव टू बी 0, आई मीन कैन नॉट बी 0 एंड ऑल दैट. यस, तो हम उसमें नहीं गिरेंगे, हम क्या पूछेंगे, विल जस्ट आस्क वन थिंग. इफ आई टेक अ नंबर, yes, if I take any number, a number, and I ask you for the nth term of it, yes, if I ask you, एक सेकेंड guys, आज थोड़ा पेन में थोड़ा सा डिफिकल्टी है, but try to bear with us. nth term of any given number, any given number का अगर मैं nth term पूछूं और आप वो निकाल सकते हो, if you can find that out, then that number is a rational number. Let me give you a very good example for that to begin with. Yes, if I take a number say 1/2, कहाँ है, हाँ, if I take a number say 1/2, yes, if I ask you what is the second term after decimal point, can you tell me what it is? What is the second term after decimal point of 1/2? Quick, what is the second decimal term after the point? Yes, what is the second term after the point? इसको कैसे लिखेंगे, 1/2 को हम लिखेंगे 0.5 करके. yes, तो 5 डेसिमल पॉइंट ये रहा, आफ्टर द डेसिमल पॉइंट ये रहा अपना फर्स्ट टर्म, एंड आई नो दैट इसके बाद मैं कितने भी 0 लगा दूं. yes, so what will be my second term? This. So if you can find out the nth term of a given number, it is rational. yes, वो क्या है, रैशनल है. nth टर्म अगर निकाल सकते हो मतलब ये नंबर आपको समझ में आ रहा है. what do you mean by rational? something that has logic in it, है ना, something that follows some kind of a
rule or follows some kind of an understanding, a number that is comprehensible. Yes, तो आप कोई भी नंबर उठा लो, उसका nth टर्म अगर मैं ask you what is the 1 millionth term of 1 by 3, can you figure it out? Can you tell me what will be the 1 millionth term after decimal for 1 by 3? क्या होगा 1 millionth term? 1 by 3 is what? 0.3 recurring. Yes. तो ये जन्म जन्म तक चलते रहेगा, राइट? यहाँ पे रास्ते में जो है फॉर एवर वाले रिलेशनशिप्स टूट जाएंगे, बट ये चलता रहेगा. यस. So there is no end to this. That means if I can find out nth term of any given number, that is a rational number. Cool? Yes. सुशांत सिंह, सुशांत, मैं क्या बोल रहा हूँ, पी बाई क्यू वाला झंझट छोड़ो ना. पी बाई क्यू वाले को भूलो, गोली मारो, इस पे ध्यान दो. ठीक है, जो समझ में आए, जिसका nth टर्म आप निकाल सकते हो वो रैशनल, जिसका नहीं निकाल सकते वो इरैशनल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट टर्म्स दैट वी कैन नॉट फाइंड आउट nth टर्म. एंड व्हेन आई से वी कैन नॉट फाइंड आउट nth टर्म, मतलब ऐसा नहीं है कि उसका कोई रिलेशन नहीं है या उसका कोई पैटर्न नहीं है. So if I ask you what would be the nth term of something like root 2? root 2 का आप मेरे को 12th term बताइए. Yes, what would you have to do for this? For you to find out the 12th term of root 2, you would have to do what? You would have to solve this, है ना? आपको ये बैठ के सॉल्व करना पड़ेगा. 1.414 करके आपको पूरा लगा के फिर 12th टर्म जो है पिक करना पड़ेगा. या बट दिस इज डूएबल, ये हम कर सकते हैं. वी कैन फाइंड दिस आउट. बट इफ आई रिप्लेस दिस 12 विथ समथिंग कॉल्ड n, इसको मैं 12 हटा के अगर मैं पूछूं nth टर्म, is there any formula, is there any pattern behind this? नहीं. Yes, that becomes irrational. Yes. On the other hand, if I take something like root 9, so you can find out. Yes, then you can find out what would be the nth term after the decimal point. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 होगा. ये हम क्लियर है. तो मैं आपको बीच में, नींद के बीच में, if I wake you up in the middle of the sleep and I ask you, buddy, root 9 का 45th million number क्या है? You would be able to tell me without flinching. You would probably slap me for doing that, but what I'm saying is you would still be able to answer the question and then beat me up for that. Yeah, but अगर वही मैं आपको पूछूं कि buddy what is the 10th term of root 5, आप मेरे को क्या करोगे? आप मेरे को पहले पकड़ोगे, yes, कैलकुलेटर उठाओगे, फटाफट से नंबर मारो, कैलकुलेटर से कैलकुलेटर मारोगे, है कि नहीं? धम 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 मारोगे, राइट? विभोर 1.414 के आगे भी होता है. डेफिनेटली होता है बड़ी, definitely होता है. 1.414 is not the end of it. Got it? Yes. Now let's talk about controversial numbers, controversial irrational numbers. तो ये चीज क्लियर है गाइस, ये चीज क्लियर है that square root. तो irrational numbers के कोई एग्जांपल देख लेते हैं, राइट? Square root of prime numbers. Square root of prime numbers are definitely irrational. Why? Because you cannot plot this anywhere डेफिनेटली ऑन अ नंबर लाइन. समझ, नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हो, अप्रोक्सीमेटली प्लॉट कर सकते हो, एग्जैक्टली प्लॉट करना बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. या बिकॉज दिस हैज नो एंड एट ऑल, इट कीप्स गोइंग ऑन एंड इट डज नॉट रिपीट ऑल्सो. तो इसमें ना तो पैटर्न है ना इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है. आर यू गेटिंग दिस? अच्छा, जोंक्स था, विबोर का जोंक्स था. ऑलराइट, so this is clear. ये तो सबको पता ही है. the square root of prime number is क्या? is a irrational number. yeah, but let's talk about one very controversial number के बहुत सारे लोगों के मन में ये बात है कि सर इसका क्या सीन है, सर ये क्या नंबर है, ये कौन निकाला, इसका क्या मतलब, इसका रीजन क्या था निकालने का, इसको रख के लोग करते क्या है, ये क्यों है, राइट? Pi, is it irrational or is it rational? Quick guys, tell me. Quick. Is pi rational or irrational?
टेल मी गाइस, पाई का वैल्यू क्या है, रैशनल या इरैशनल? अरे रीजनिंग रीजनिंग बाबू, आपका नाम क्या, आपका नाम बताओ यार। रीजनिंग बड़ी, व्हाट इज योर नेम? अच्छा, उसका रेस्पॉन्स है, मतलब किसका कैट पक्का है, कैट ही पक्का है कि नहीं? आईआईएम का खुद का कैट अभी पक्का नहीं है गाइस। सुपर, so everyone is saying irrational, बहुत खूब, very nice. Most of you all are saying irrational, but if you actually divide 20, if you actually if you actually divide 22 by 7, yes, if you actually divide 22 by 7, you would end up getting what? 3.142857 142857 142857 and so on. तो ये क्या है? This is what? Recurring and non-terminate. मतलब ये क्या हो गया? रैशनल हो गया. अगर मैं आपको यहाँ पे पूछूं what would be the 10th term, you would be able to tell me, because 2 4 every 6th term is 7. That means the 10th term is going to be what? 4 numbers after that, 1 2 3 4 8 है. समझ में आ रहा है आपको? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, every 6th number is 7. देख, 6th number, 12th number, 18th number will be 7. Correct? That basically means I can find out the nth term. हाँ, correct Vibhor, correct. Now Saksham, very nice name buddy. अच्छा, तो पाई का वैल्यू 22/7 भी नहीं है, 3.14 भी नहीं है, right? This is the value of pi has been brought into this form to make it again comprehensible. तो ये ध्यान में रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। अगर आपको कोई पूछे कि 22/7 ये है कि नहीं है, रैशनल है कि नहीं है, तो 22/7 लेडीज एंड जेंटलमैन इज रैशनल. On the other hand, pi is actually not rational. Clear है? Any confusions guys? क्या समझ में आया कि नहीं आया गाइस? कैट एग्जाम होगा या नहीं? कैट एग्जाम होगा या नहीं? आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कैट कि नहीं चाहिए? What do you want? Do you want CAT to happen in 2020 or no? You tell me and I'll tell you what would happen. Yeah. Clear है guys? No confusions with this. तो चलिए अब आगे चलते हैं. Let's move ahead. Now let's talk in more detail about rational numbers. Rational numbers दो तरीके के, integer form and non-integer form. That means if you can write any number in the form of p by 1, तो वो integer हो गया. Keeping in mind p itself is integer, मतलब इसका खुद का जो है इसका खुद का definition जो है paradox है. Yes, any term that can be written in the form of p by 1 where p is an integer makes it an integer. Yes, but you understand that anything that cannot be written as just p, that becomes non-integer, right? तो non-integer में क्या आता है? इसमें आते हैं decimal आते हैं और इसमें आते हैं fraction. Yes, basically decimal itself can be written in form of fraction, yeah, but let's talk about both of them. तो डेसिमल में हमने ऑलरेडी बात कर लिया, रेकरिंग नॉन रेकरिंग, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग. यस, रेकरिंग नॉन रेकरिंग, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, तो इससे बारे में बात करने की जरूरत नहीं है. फ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं. आज गाइज मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा ऐसा लग रहा है कि मेरा पेन जो है थोड़ा सा खंबा वंबा चढ़ा के आया है. अंडरस्टैंड, मतलब पेन चढ़ा के आया होगा, मैं नहीं गाइस. हाँ, तो ये मैंने आज आई हैव चेंज्ड माय लैपटॉप टुडे. पहले वाले में आप लोग बहुत कंप्लेन कर रहे थे कि सर आवाज नहीं आ रहा है, कभी जोर से आता था कभी नहीं आता था, सर कभी लैग हो रहा है, कभी आप ऐसे अटक रहे हो, कभी आप ऐसे अटक रहे हो. विभोर के स्क्रीनशॉट में मैं ऐसे अटक गया था है ना. तो इसलिए मैंने कंप्यूटर चेंज किया. तो थोड़ा सा बेयर करिए, लिटिल बिट बेयर विथ माय हैंडराइटिंग. यस, फ्रैक्शंस में क्या क्या है? फ्रैक्शंस में वी हैव प्रॉपर पटोला, प्रॉपर फ्रैक्शन,
Yes, then we have something called improper fraction. Yes, what do you mean by proper fraction? Proper fraction is something whose numerator, yes, whose numerator is less than the denominator. Correct? 2 by 7 is proper. Why? Because it has to be less than 0. इसका value जो है, the fractional value n by d का value, if it is less than 0, then it is proper fraction. और improper fraction क्या हो जाएगा यहाँ पे? What would be a fraction that is not very proper? Where कहाँ कर्सर कहाँ भाग गया? हाँ ये रहा. Where the numerator is greater than the denominator, या इसका fractional value जो है greater than 0 है, या और ये है. तो improper fraction को हम फिर mixed fraction करके लिखते हैं, right? So if I have 7 by 2, if I have 7 by 2, then this is improper. I would actually write this as what? I would write this as 3 1 by 2. करेक्ट? तो ये improper fraction को mixed fraction में लिखने का फॉर्म. या दिस इज समथिंग दैट अगेन आपको लग रहा होगा कि सर क्या सर आप मतलब वापस 5th स्टैंडर्ड में लेके जाए धकेल रहे हो, मतलब आप प्यार से भी नहीं, आप मतलब गुस्सा से मार रहे हो, बोल रहे हो कि चलो 2nd स्टैंडर्ड में, चलो 3rd स्टैंडर्ड में. बट ये थोड़ा बहुत जानना जरूरी है गाइस, सो दैट वी डोंट गेट स्टक विद दीस बेसिक्स. नाउ विद इंटीजर, इंटीजर क्या है? एनी नंबर ओवर 1. yes, whether number has to be a standalone number. तो इंटीजर के बारे में जो है हम डिटेल में बात करेंगे. सर आस्क मी माय क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग, आई विल आंसर इट टुडे. आई वाज द फर्स्ट इन क्विज ऑफ अनअकैडमी एनटीएससी एंड फाउंडेशन. वेरी नाइस बड़ी, बहुत खूब. बट आपको चैलेंज कर कौन रहा है? बट हु इज चैलेंजिंग यू? सक्षम. आपको कौन, मतलब कौन मस्ती क्या रहे सक्षम के साथ? ए बच्चा लोगों को मस्त छेड़ो भाई, है बुलिंग करते हो. चलिए आगे चलते हैं, इंटीजर की तरफ चलते हैं. राइट, व्हाट आर इंटीजर्स? नेगेटिव इंटीजर्स, होल इंटीजर्स. यस, तो नेगेटिव नंबर्स आर नंबर्स दैट आर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द नंबर लाइन. एनीथिंग दैट इज अ डेफिनेट लेस देन 0 is negative. yes, anything that is anything that is greater than or equal to 0 is whole. या नेगेटिव क्या है? लेस देन 0. इसको पॉजिटिव भी बोल सकते हैं. यू कैन कॉल दीज एज पॉजिटिव इंटीजर्स ऑल्सो, बट देन इसके अंदर पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे. नॉट ऑल होल नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स. क्यों? क्योंकि भैया जो 0 है बहुत ही चंट आदमी है. ठीक है, 0 जो है वो हर जगह पे खेलता है. राइट, विल टॉक अबाउट 0. बट ये आपका क्लियर है क्या? नेगेटिव होल इज क्लियर. yes, so everything on the left side of the number line is negative. Everything including the middle and the right is what? whole. clear? तो ये लेफ्ट विंग राइट विंग वाली बात हो गई. अब आगे आप अलग से लड़ते रहना कमेंट सेक्शन में, मेरा जो बोलना था मैं बोल गया. आगे चलो, let's talk about whole numbers now in detail guys. whole numbers में क्या क्या है? again we have what? a number called 0. again a very debatable number right from its inception. ये नंबर इतना डिबेटेबल है. द नंबर 0 इज सो डिबेटेबल दैट पीपल आर स्टिल फाइटिंग फॉर हु फिगर्ड इट आउट, हु डिस्कवर्ड द नंबर. और डिस्कवर किया तो आई नीड द स्टोरी ऑफ द डिस्कवरी ऑफ द नंबर 0. मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आर्यभट्ट ने ही किया था या जिस किसी ने भी किया था, वो डिबेट पे मैं नहीं जा रहा हूं. मेरा डिबेट ये है कि ये क्या है नंबर, ये क्या है, ये क्यों है, कौन बनाते हैं ऐसे नंबर. या व्हाई? बिकॉज 0 इज neither positive nor negative. है 0 is neither prime nor composite. yes, 0 is a very weird number क्योंकि 0 को रखे you can actually equate things that would otherwise never be equal. yes, so 0 is a boon and a bane, a blessing and a curse, both in its own disguise. yeah, okay, then comes what? natural numbers. natural numbers बहुत ही मन के अच्छे. उनका एक ही एम है कि भैया अपनी उंगलियों पे काउंट कर लो, बस है.
ये मेरा पर्पस है. द एग्जिस्टेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स हैव ऑलवेज बीन बीइंग एबल टू काउंट ऑन द फिंगर्स. तो एनी नंबर दैट इज ग्रेटर देन 1 एंड एन इंटीजर, इंटीजर को हम यूजुअली z बुलाते हैं, z बुलाते हैं, है ना. द सेट इज कॉल्ड z. तो एनी नंबर दैट इज ग्रेटर देन 1, सॉरी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, या ग्रेटर देन 0 कर लो इसे. यस, ग्रेटर देन 0 एंड एन इंटीजर इज व्हाट? नेचुरल. या हेमंत, हेमंत नो, नो हेमंत, गलत बात, गलत बात हेमंत. यस, गलत बात हेमंत, बहुत बहुत बुरा लगा मेरे को ये सुन के. दैट इज एक्चुअली नॉट ट्रू. अगर होता तो मैं यहाँ लिखता, यहाँ नहीं लिखा, मतलब दैट इज नॉट ट्रू, है ना. विल टॉक अबाउट दैट. हाँ पूजा लक्ष्मी, वेरी नाइस. सो 1 टू इंफिनिटी, यस 1 टू इंफिनिटी नेचुरल नंबर्स. फिर वापस यही क्वेश्चन है कि ये क्या है ना. तो हम इंफिनिटी पे अकेले पे अलग पूरा चैप्टर कर सकते हैं. हाँ इंफिनिटी मतलब कोई तो फुल शीलावती फिर बोला कि अच्छा मैं एक नंबर बनाएगा जिससे बड़ा कोई नंबर नहीं है. हाँ इंफिनिटी जब बनाया गया था, व्हेन इंफिनिटी वाज ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस, समवन वाज लाइक अच्छा बड़ा नंबर कौन है. कोई बोला 100 है, कोई बोला 1000 है, कोई बोला 1 मिलियन है, 1 ट्रिलियन है, 1 गजिलियन है. तब कोई आके बोला रुको, ये पकड़ो इंफिनिटी, इससे बड़ा कुछ नहीं है, राइट. सो इट कैन नॉट एक्चुअली बी डिफाइंड. इंफिनिटी इज समथिंग दैट कैन नॉट बी डिफाइंड, but as long as that set keeps going on, the last term of it would be infinity. Got it? Yes, काव्या, बहुत खूब, बहुत खूब. हाँ मतलब अंकुश, जीरो ही मैथ है, मैथ ही जीरो है. मतलब एटलीस्ट माई 10th स्टैंडर्ड मैथ स्कोर से दैट. अच्छा मजाक करो. चलो अब लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स. इवन नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है. बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा था कि सर जीरो मतलब क्या है, जीरो कौन है, कहाँ गिरता है. तो यहाँ पे गिरेगा. इवन नंबर का डेफिनेशन क्या है गाइस. do not call it multiple of 2 and all that, right. just think of this. if I divide any number by 2, उसका रिमाइंडर 0 अगर है तो वो क्या है, इवन है. मतलब if I take any number, let's say I take 66, I divide it by 2, इसका रिमाइंडर क्या होगा. आई डोंट केयर अबाउट इट्स क्वोशिएंट. इसका रिमाइंडर क्या होगा, इसका रिमाइंडर होगा 0, क्योंकि इट्स परफेक्टली डिविजिबल. या दैट मींस इट्स इवन. ऑन द अदर हैंड, इफ आई टेक अ नंबर लाइक 65, व्हाट डू यू नो, इट्स नॉट डिविजिबल, क्योंकि इसका रिमाइंडर क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, मतलब 1 होगा. द रिमाइंडर ऑफ दिस वुड बी व्हाट, 1. नॉट इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, 1. देयर कुड बी ओनली 2 काइंड ऑफ रिमाइंडर्स व्हेन यू डिवाइड अ नंबर बाय 2. ये तो आपको सबको पता ही होगा. जब किसी नंबर को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 या 0, I should write it as 0 and 1, but 1 या 0 are the two possible reminders of 2. yes. तो इस डेफिनेशन को रख के, राइट, इस डेफिनेशन को रख के we can surely say what, we can say that when you divide 0 by 2, when you divide 0 by 2, उसका क्या रिमाइंडर होगा गाइस, 0. क्यों, क्योंकि 0 is perfectly divisible by 2. that is the only understanding of even. अब आप पूछोगे कि सर 0 तो 3 से भी डिविजिबल है, तो वो इवन कैसे रहा, ऑड रहा. उसका आंसर मेरे पास ये है कि 6 भी 3 से डिविजिबल है. 6 is also divisible by 3. that does not mean कि ये ऑड है. समझ में आ रहा है. तो it has nothing to do with 3 or any other number, it only has to do with the number 2. तो यहाँ पे 2 जो है सबसे सिग्निफिकेंट नंबर है. ये अगर मेरे को मिल जाए तो गाइस, मेरा कर्सर किसी को दिख रहा है तो मेरे को बताओ गाइस. जेट कहाँ घूम रहा है भाई. अरे हाँ, ये रहा. तो इवन एंड ऑड, द डिसाइडर ऑफ दैट इज दिस नंबर एंड दिस नंबर अलोन. ठीक है. तो 0 इज एन इवन नंबर गाइस. ये डिक्लेयर कर दिया है, इसके नीचे में साइन भी कर देगा. ये मैंने डिक्लेयर कर दिया. ठीक है. इस पे केस ठोकना तो अलग से ठोक देना. क्लियर. 0 इज एन इवन नंबर. कूल. And what is an odd number? Anything that is not even is odd. Yeah, or anything that does not give a remainder of 0 is odd. Yes, so if I take a number, if I divide it by any number, if I divide it by 2, if I take 3 divided by 2, मेरे को 1 आएगा रिमाइंडर, तो वो क्या है, even. If this is not equal to 0, it is even. Sorry, odd. Clear?
तो अब अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज व्हाट अबाउट अ नंबर लाइक -6? इज -6 इवन या ऑड? क्विक गाइस, टेल मी, इज -6 इवन और ऑड? या गाइस एनी आंसर्स? -6 क्या है? इवन है, ऑड है, क्या है? इज इट इवन और ऑड? जो बताएगा उसे मिलेगा। अभी छोड़ो, अभी मैं कुछ बता नहीं सकता क्या मिलेगा, बट एटलीस्ट मन में संतुष्टि मिलेगा। करिश्मा सेज इवन, he or she is clashes, सही है, सब बोल रहे इवन है, वेरी नाइस। -6 इज नीदर इवन नॉर ऑड। वाई? क्योंकि ये दिस इज नॉट इवन अ नेचुरल नंबर। यस, इवन एंड ऑड का कॉन्सेप्ट कहां पे गिरता है? व्हेन इट कम्स टू होल नंबर्स। गाइस प्लीज अंडरस्टैंड, इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट कब गिरता है? इवन और ऑड बोथ बिलोंग टू द सेट कॉल्ड होल नंबर्स। यस, so if your term is not whole number, then it is not even, not odd. Are you getting this guys? Ravi Kumar, बहुत खूब, very nice Ravi Kumar. So Akshay, very good, got it. Ankush, it is an integer, but when we go down to even or odd, it starts talking about whole numbers. Yes, बट फिर ये कॉन्ट्रडिक्शन है सर कि अगर मैं इसको यहाँ पे डालू, इफ आई पुट -6 डिवाइडेड बाई 2, तो उसका रिमाइंडर भी तो 0 आएगा ना सर? आएगा। दैट इज वाई अगेन नेगेटिव टर्म्स आर समथिंग दैट इज स्टिल डिबेटेबल के इवन है नहीं है। एक रूल में मान रहे हैं, एक रूल में नहीं मान रहे, बट देन व्हेन वी से n, व्हेन वी पुट दिस नंबर n, तो हम यही अस्यूम करते हैं कि ये n इज अ होल नंबर। गॉट इट? यस, डिम्पी जरूर करेंगे, जरूर। यस, वी विल डू दैट व्हेन वी टॉक अबाउट पावर्स एंड रूट्स, तब करेंगे वो वाला। यस, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट। यस सर, योगंडा से है क्या? जरूर है। आप तशरीफ रखिए, आप मूत्र विसर्जन करने जाइए। चलिए ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट अ फ्यू। अच्छा, टाइम जा रहा है गाइस, टाइम जा रहा है, फटाफट से ये बात कर लेते हैं कि इवन और ऑड नंबर्स के क्या क्या ऑपरेशंस है, राइट? So if you add or subtract two odd numbers, if you take two odd numbers and you either add it or you subtract it, what would you get? You would end up getting an even number. Yes, so if I take two odd numbers, yes, if I take two odd numbers 9 and 3, I add it, this is what even, I subtract it, this is what even. Yes, ये क्या है? even है। if I subtract it, ये क्या है? क्या हो रहा है? 12, और ये क्या है? 6, दोनों even, right? Or it can be 0 if these two terms are similar. Yes, again add or subtract two even numbers. Yes, Krati, yes, we will cover geometry as well. Definitely we will cover geometry as well. हाँ, confusion तो मतलब भर भर के है यहाँ पे guys. Add or subtract two even numbers, उसका result even रहेगा. Add an even number with an odd number or subtract an odd number with even number, जो भी even, odd, even, add, subtract, जो भी आप इसका combination करोगे, the result will always be an odd number. Multiply two odd numbers, you will end up getting an odd number. Would you agree? Multiply two odd numbers, you will always end up getting an odd number. 3 5 times 15, 7 9 times 63, always an odd number. Multiply two even numbers, you will definitely end up getting an even number. Yeah, and if you multiply an odd number with even number, तो यहाँ पे किसका है? even का थोड़ा सा dominance ज्यादा है. Multiply an odd number with even number, also you would end up getting an even number. Yes, ऑड प्लस इवन इज ऑड। तो मैं क्या बोल रहा था पूजा लक्ष्मी? ऑड प्लस इवन इज ऑड ओनली। ऑड प्लस इवन इज ऑड, ऑड माइनस इवन इज ऑल्सो ऑड। गॉट इट? या, एंड इफ आई रेज एनी इवन नंबर टू एनी पावर, कीपिंग इन माइंड के n जो है इज अ होल नंबर। यस, इफ आई रेज
even any even number to any power, it will also end up being even always. जैसे कि if I take a number 16, if I raise it to any power 2, 3, 4, 5, whatever, will always be an even number cube. Basically you would be multiplying even numbers multiple times. तो ये वाला रूल जो है लागू हो जाएगा. Yes. The same thing would apply for what? Odd. Odd number raised to any power, even power, odd power, जो भी है, n का irrespective of what the exponent is, it will always be odd. Yes. Correct. Yes, Dolly. Correct. हाँ विभोर, मैं n इस सोच से रखा था कि नंबर, एनी नंबर n, ऐसा मैंने सोचा था. बट नाउ आई रियलाइज आई शुड हैव एक्चुअली यूज्ड अ डिफरेंट टर्म. बट वो n जो है कैपिटल n होता है. दैट n, द सेट n इज कैपिटल n. तो टेक्निकलिटी पे अगर आ रहे हैं तो हाँ, गॉट इट. ठीक है गाइस, तो इसके साथ हम एंड करते हैं. कल हम बात करेंगे प्राइम कॉम्पोजिट नंबर्स की, बहुत इंटरेस्टिंग है. एंड वी विल टेक दिस फर्दर. प्राइम नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स को रख के इतना सारा हम बात कर सकते हैं, इतना सारा जानकारी ले सकते हैं उससे कि मतलब मजा आ जाएगा, है ना. या तो क्विकली गाइस, क्विकली, इफ यू हैवंट ऑलरेडी लाइक्ड दिस वीडियो, इमीडिएटली गो लाइक दिस वीडियो. अगर आपने ये वाला अपना टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन नहीं किया तो इमीडिएटली ज्वाइन करिए गाइस. क्विक, फटाफट से पहले लाइक करिए वीडियो को. आज का आपका पहला होमवर्क है वीडियो को लाइक करना है. दूसरा होमवर्क है चैनल को सब्सक्राइब करना है. ठीक है. और तीसरा क्या है, अपने आप को इसमें ऐड करवाना है. इफ यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस, और अगर आपको कोई भी बात करना है, यस, तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, मेरा टेलीग्राम हैंडल सब एक ही है, सुराना लाइव. So you can definitely follow me. People who follow me know that I am a good conversationalist, and I also put up some not very अच्छा मैं कहर मीम्स डालता हूँ. ठीक है, मेरे मीम, my meme game is strong. ठीक है. तो आप, if you want to follow me, you can definitely go ahead follow me. Instagram, Telegram दोनों पे मेरा यही हैंडल है, सुराना लाइव. And if you are someone who has just begun preparing, अगर आप अभी प्रिपेयर करना चालू कर रहे हो तो फिर प्लीज लिसन टू दिस केयरफुली. यस. बाकी के लोग आप आशीष सर के क्लास में जाइए. DILR की बहुत ही मस्त क्लास चल रही है वहां पे. और अगर आप पहली बार ये सेशन अटेंड कर रहे हो या आप अभी बस प्रिपरेशन चालू करने वाले हो, देन लिसन टू मी. या Silla, the class timings are 8 to 9 for me. My class timings are 8 p.m. to 9 p.m. But our classes totally start from 6 in the evening. Yes, 6 till 11, 5 hours back-to-back classes. Yeah. हाँ, एकदम है ना. Super. Alright, तो हाँ, यहाँ पे हम क्या बात करें, we're talking about the subscription. A lot of you keep asking कि सर इसका importance क्या है, right? So let me just give you some quick information about that. हम जो YouTube पे live classes कर रहे हैं, right? They come with constraints. अभी आपको पता चल रहा है कैसे, like we had to cut short the class because we were running out of time. वो प्लस पे नहीं होता, right? प्लस पे it's like we can take classes as long as 180 मिनट, 3 घंटे तक की क्लास ले सकते हैं. अगर आप बैठने के लिए रेडी हैं तो हम पढ़ाने के लिए रेडी है, राइट? तो लाइव क्लासेस, infinite number of classes you can attend live, infinite number of times you can watch these sessions live. You can also have these sessions recorded version, you can watch them at any point in time. कभी भी आपको पढ़ने का मन होता है, रिकॉर्ड करके रख लो. कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जो आपको कंफ्यूजन होता है, रिकॉर्ड करके रख लो. अगर आप ऐसी जगह से हो जहां पे इंटरनेट कनेक्शन का फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा रहता है, रिकॉर्ड करके रख लो, राइट? यू कैन नॉट, इट्स नॉट लाइक यू हैव टू सिट एंड रिकॉर्ड कुछ, ऑटोमेटिकली इट विल बी इन द डेटाबेस. या, and you can download these classes also. That's the best part about it. The next thing is you would be able to interact with educators that you have only dreamt of. मतलब आपके favorite educators that you have been looking up to. Yes, educators like Arun Sharma, educators like Patrick D'Souza, people who have been in this game, people who have been in this game for
as long as our ages combined are. Yes, तो ये लोग यहाँ पे पढ़ा रहे हैं people who do not have access to कि सर मैं उस जगह पे जाके नहीं पढ़ सकता, सर मैं दिल्ली नहीं जा सकता, मैं मुंबई नहीं जा सकता, अभी तो कोई कहीं पर भी नहीं जा सकता है ना। तो ऐसे में आपको घर बैठे आपके कंफर्ट पे और आपके हेल्थ को जीरो रिस्क दिए ये आपके आ रहा है एकदम आगे। यस, नेक्स्ट क्या है, लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड्स। ये क्या करेगा, दिस विल एनेबल, आपने अगर हमारा मेंटी क्विज देखा है, राइट गाइस, अगर आपने हमारा मेंटी क्विज देखा है तो दैट इज व्हाट हैपेंस हियर आल्सो। मतलब हर क्वेश्चन, हर क्लास एक क्विज कंपटीशन की तरह, क्योंकि दो चीज की जरूरत होती है यहाँ पे, मोटिवेशन। तो आप देखोगे कि यार आपके आगे सिर्फ एक और बंदा है तो आपका मोटिवेशन रहेगा कि हमें भी ऊपर आना है। एंड द अदर थिंग वुड बी व्हाट, यू विल हैव अ रियलिटी चेक। आपको पता चलेगा कि विद कंपेयर टू अदर पीपल आप कहां पर हो। तो लाइव पोल्स, लीडर बोर्ड्स विल एनेबल दैट। एंड व्हाट डू यू हैव, टेस्ट सीरीज एंड इट्स एनालिसिस। तो बहुत लोग क्या करते हैं, बाहर से अलग से जो है सिर्फ मॉक टेस्ट का पैकेज खरीदते हैं। यस, वो मॉक टेस्ट का पैकेज इज इक्विवेलेंट ऑफ अपना पूरा क्लास का पैकेज। यस, तो आप जो अलग से सिर्फ मॉक खरीदोगे वो इसका एक पार्ट है, छोटा सा कंपोनेंट है, समझ में आ रहा है। इसके साथ आपको चार और चीजें मिल रही हैं। यस, तो दिस विल एनेबल व्हाट, फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आप कितने मार्क्स ला रहे हो, आपका स्कोर का क्या पैटर्न है, ग्रो हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, कौन से एरिया में आप स्ट्रांग हो, कौन से एरिया में आप वीक हो, कौन से क्वेश्चन में आपको कैसा शॉर्टकट लगाना चाहिए था, कौन सा क्वेश्चन आपको छोड़ देना चाहिए था, कौन सा क्वेश्चन में आपको लॉजिक लगा के आंसर करना था। ऑल ऑफ दैट वुड बी डिस्कस्ड इन द एनालिसिस which is also a part of this. एंड लास्ट में क्या है, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन। अब इसके बारे में मैं क्या ही बोलूंगा। हाँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हम बैठ के सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम एक दिन डिसाइड करते हैं कि सर आज मैं बैठूंगा, आज मैं पूरा जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूरा निचोड़ के मैं पढ़ लूंगा। तो तब क्या होगा, एक क्वेश्चन आएगा, मोस्टली पहला या दूसरा क्वेश्चन होगा जिसपे आपको डाउट होगा, है ना। उसको रख के आप आधा एक घंटा उस पर बर्बाद करोगे, उसके इर्द गिर्द आप थोड़ा सा डूडलिंग करोगे, थोड़ा सा अपना आर्ट का जो है कीड़ा जो है उसको मचलाओगे। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये डाउट आपके साथ ही चला जाए, है ना, उस कीड़े के साथ साथ ये डाउट भी मर जाएगा। सडनली ऐसा कोई क्वेश्चन मॉक में आएगा या ऐसा कोई क्वेश्चन एक्चुअल कैट में आएगा, तब आप बैठ के सोचोगे कि यार शिट, ये अगर मैंने पहले किया होता तो क्या होता। यस, तो ये सारे जो है यहाँ पे क्या होता है, प्लस पे मैंडेटरी फोर्थ सेशन, एवरी फोर्थ सेशन मैंडेटरी है, इसमें मतलब कोई कुछ नहीं कर सकता, ये मैंडेटरी है। फोर्थ सेशन डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। आप अब तक का जितना भी आपने क्लियर किया है, कुछ भी डाउट हो आप यहाँ पे पूछ सकते हो। यस, गॉट इट। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, अपना अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा आपके फोन पे, रजिस्टर करना पड़ेगा, प्लस पे जाइए, कैट पे जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन करिए। बट उसके पहले, ये सब करने के पहले मैं क्या बोलूंगा पता है गाइस, हाँ मतलब वी आर इंडियंस, है ना, हम ऐसे हर किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। तो आप क्या करोगे, स्पेशल क्लासेस में जाओगे। यस, स्पेशल क्लासेस में जाओ, उसमें आप अगर मेरा नाम टाइप करके देखना चाहोगे तो मेरा नाम टाइप करिए, अमित सुराना, उस पर टाइप करिए, मेरा फोटो आएगा। उस फोटो में मैं ऐसा बिल्कुल नहीं दिखूंगा बट स्टिल आएगा। उसमें आप जाके देखिए, मैंने जो क्लासेस लिए हैं दोज आर फ्री ऑफ कॉस्ट, बट दोज आर मेंट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड के प्लस में क्या क्या ऑप्शंस है, कैसे कैसे पढ़ाया जाता है, एनवायरमेंट कैसा है, तो उसका जो है एक टेस्ट करने के लिए, है ना, टेस्ट ऑफ प्लस के लिए वो है। तो ये आप थोड़ा सा फिगर आउट करिए, देखिए अगर आप कब कर सकते हो जरूर करना, है ना। गॉट इट। तो इसके लिए आपको क्या है, द फी इज वेरी वेरी नॉमिनल फॉर अ 12 मंथ पैकेज, दैट इज 1 होल ईयर, 1500 से कम। एंड इफ यू यूज माई रेफरल कोड आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, मतलब दिस विल कम अप टू समवेयर अराउंड 1300 पर मंथ और समवेयर क्लोज टू 15,000 पर ईयर। 15,000 में आपको मिलेगा फुल एंटायर 12 मंथ ऑफ इट। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट 2021 then the 24 month one is the perfect one for you. Yeah, alright guys, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस है, मैं समझ रहा हूँ, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिल रहे हैं मेरे को, है ना। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट।
आपको अगर इस पे कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो मेरे को मैसेज करिए, राइट? माय इंस्टाग्राम, माय टेलीग्राम इज द सेम एज दिस. Please do not forget to like this video. Don't forget to subscribe to the channel. Hit the notification bell icon ताकि जब भी मेरा क्लास लाइव जाए आपको पता चल जाए. And this again is my Instagram, Telegram handle. आपको मेरे को अगर आप मेरे से अगर कोई भी बात कर रहा है तो feel free to do that. Yeah. All right, guys. Thank you very much. Thank you for your patience. Thank you for staying back an extra 10 minutes. I will take a leave now. I hope you guys have had a great day today. And I pray that ki aapka rest of the day goes as awesome as it was. Thank you very much, guys. I'll see you tomorrow at 8 p.m. Until then, good night. Have a great day ahead and let's crack it.